And in question number 8, this function f from a cross b to b cross c. This function is given. So in question number 8, we have a function f from a cross b to b cross a, such that, and the function defined as f, the order pair of ab, b equal to order pair of ba. So this is the function from Cartesian product a cross b to b cross a. And now we have to check whether this function is injective or bijective or both or not both, right? So first of all, let us check the injectivity, and for injectivity we will take any two, not elements here, we will take any two ordered pairs from a cross b. Okay, so if you take एनी टू ऑर्डर पेयर, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, पहला सेट है ए क्रॉस बी और दूसरा सेट है बी क्रॉस ए। एलिमेंट कैसे होंगे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है, तो उसमें एलिमेंट भी क्या होंगे, ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे। तो मैंने A1 B1 और A2 B2 मैंने लिए ए क्रॉस बी से। एंड व्हाट इज द ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी इज डोमेन। मैंने डोमेन से ये दो ऑर्डर पेयर ले लिए, और किस तरह के ऑर्डर पेयर लिए मैंने, सच दैट द इमेजेस आर इक्वल, एफ ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 B2। ये मैंने ऑर्डर पेयर ले लिए। यहां से जब आप देखेंगे, आप देखिए एफ ऑफ ए बी क्या है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो एफ ऑफ A1 B1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 A1। यहां से चेक कीजिए आप, तो ये हो जाएगा B1 A1 इक्वल टू, और एफ ऑफ A2 B2 क्या मिलेगा यहाँ से, B2 और A2। एंड इफ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2। सो आपको यहाँ से क्या मिला कि इफ any two, the images of any two order pairs are equal, A2 B2 images are equal, तो यहाँ से ये एलिमेंट भी तो इक्वल ही होंगे भाई, B1 A1 इक्वल टू B2 A2, यहाँ से B1 B2 इक्वल टू A1 A2 आ जाएगा। इट मीन्स अगर आप ये लें कि A1 B1 इक्वल टू A2 B2, इमेजेस इक्वल लेकर के चले, तो यहाँ से ऑर्डर पेयर इक्वल आ गए फॉर ऑल A1 B1 and A2 B2, both order pairs are from A cross B, and hence your function f is 1 1 function, f is 1 1 function, first part. And in second part we will check the surjectivity of this function, और surjectivity के लिए क्या लेंगे भाई, surjectivity, and for surjectivity we will take let। आपने लिया, आप इसके कोडोमेन से एक ऑर्डर पेयर लेंगे BA टाइप का, BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A। अगर आपने ये इसमें से लिया है सच दैट, सो यहां से क्या मिलेगा आपको, B में होगा भाई। इफ दिस ऑर्डर पेयर BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A, इट मीन्स दिस एलिमेंट B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू A, B belongs to B and A belongs to A। अगर ऐसा है तो फिर AB टाइप के ऑर्डर पेयर किस में आएंगे, वो A क्रॉस B में आएंगे। बताओ, जब B B में है, A में है, तो जो AB टाइप के ऑर्डर पेयर किस में आएंगे, A क्रॉस B में आएंगे। इट मीन्स फॉर ऑल BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A। अगर आपके यहां से आप देखिए, अगर ये BA B क्रॉस A में है, फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स there exists a pre-image AB in this A cross B, such that f of AB equal to BA. So for all order pair belonging to in the codomain BA, order pair BA belongs to B cross A, there exists एक ऐसा ऑर्डर पेयर ए बी डोमेन में, डोमेन मीन्स ए क्रॉस बी में होगा,
there exists AB in A cross B such that f of AB equal to B, and hence your f is on. Here the function f is 1 1 and onto implies that f is bijective function. Bijective. Since the function is injective and surjective, so it is bijective. Next question, and in next question, question number 9. Question number 9, a function f from n cross n and to n. A function f from n to n. Correct it. In question number 9, f from n to n is defined as, this function is defined as fn equal to, इसकी वैल्यू n प्लस 1/2 आएगा कब, इफ n इज ऑड, एंड n/2 if n is even. So now we have to check whether this function is bijective. Now we will check whether this function is bijective or not. So first of all, let us check the injectivity, and in injectivity we will take any two elements from the domain, and the domain is this n. So we will take let n1 और n2, मैंने कोई से दो एलिमेंट लिए n से, n मीन्स डोमेन से, मैंने डोमेन से कोई एलिमेंट लिए, और कैसे लिए, सच दैट fn1 इक्वल टू fn2, जिससे उनकी इमेजेस बराबर आए. इमेजेस बराबर लेकर मैं चल रहा हूँ, मैंने ऐसे एलिमेंट लिए जिनकी इमेजेस बराबर हैं, और अब मैं चेक करूंगा कि क्या वो एलिमेंट्स भी इक्वल है. यहाँ पर अगर आप देखें, लेट, अगर आपने n1 इक्वल टू, मैंने 1 ले लिया, अगर आपने n1 इक्वल टू 1 ले लिया तो मैंने f के द्वारा 1 की इमेज देखी, f के द्वारा 1 की इमेज देखूंगा. 1 क्या है, 1 इज ऑड. अगर ऑड है तो फंक्शन क्या होगा, 1 n प्लस 1/2, n है 1, 1 प्लस 1/2 मीन्स 2/2 इक्वल टू 1. आपने n इक्वल टू 2 लिया, n इक्वल टू 2 लिया तो मेरा यहाँ f2 आएगा, f2 आएगा तो 2 है मेरा इवन. अगर इवन है तो फंक्शन की वैल्यू ये आएगी, n की जगह पे आप लिख देंगे 2/2 मीन्स 1. सो हियर you see f1 equal to f2 and both are equal to 1, but 1 is not equal to 2. भाई इमेजेस तो दोनों की इक्वल हैं, दोनों की इमेज कैसी हैं, इक्वल है. यहाँ आपने ये दो सेट से n से लेकर के n तक, नेचुरल नंबर से बड़े नेचुरल नंबर तक 1 और 2 दोनों की इमेज निकाली, और वो इमेज क्या आई, 1. तो आपका फंक्शन 1 1 तो नहीं रहा. इट मीन्स योर fn1 equal to fn2 implies that n1 is not equal to n2 for all n1 n2 belongs to your domain. f is not 1 1. आपका फंक्शन कैसा हुआ, हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है. नाउ लेट अस चेक द सर्जेक्टिविटी, और सर्जेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, कोडोमेन से एक एलिमेंट लेते हैं. सर्जेक्टिविटी एंड फॉर सर्जेक्टिविटी, ये मेरा डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये फंक्शन है, मैं यहां से एक एलिमेंट लूंगा, यहां से सपोज करिए, यहां से उठाए. अब आप ये देखिए, ये क्या है, कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल. अब इस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में देखिए है क्या, सारे ऑड नंबर्स इसमें होंगे. भाई ऑड है तो ये आएगा, इवन है तो ये आएगा, सारे इवन नंबर ऑड नंबर सभी हैं इसमें. यहाँ पे आप देखिए, हियर लेट, मैंने क्या किया, यहां से एक बाई लिया, बाई बिलोंग्स टू n, कोडोमेन से लिया. अब आप यहाँ देखिए, n का आप जो भी नेचुरल नंबर देंगे, आप n को जो भी नेचुरल नंबर देंगे वो सारे किस में आएंगे, इसमें आएंगे.
ये आएगा 1 भी आएगा, क्यों? क्योंकि n ऑड भी आएंगे और सारे इवन भी आएंगे। n इवन ऑड सारे नेचुरल नंबर आएंगे। अगर सारे नेचुरल नंबर आएंगे इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट्स की प्रीमेज यहाँ पर होगी। सो बाय n बिलोंग्स टू n ले लीजिएगा यहाँ पर, लेट n बिलोंग्स टू n इन कोडोमेन सच दैट f के द्वारा n की इमेज क्या बनी, यहां पर बनेगी कोडोमेन में। मान लीजिएगा वो बाई बनती है, ये बाई ले लीजिएगा यहाँ पर, बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, बाई ही ले लो, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू बाई। सो हियर यू सी फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू n कोडोमेन there exists x belongs to n domain such that fx equal to y। यानी प्रत्येक बाई के लिए डोमेन से आप कोई भी एलिमेंट अगर उठा लेंगे, आप डोमेन से कोई भी एलिमेंट अगर उठाते हैं तो उसकी प्रीमेज कहाँ आएगी, प्रीमेज n में आएगी। दूसरे एग्जाम्पल से भी आप यहाँ देख सकते हैं, और मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं यहां से, ये मैं रफ कर रहा हूं, देखिए लेट आप इफ n इज इवन, n इज ऑड, अगर आपने n ऑड लिया, n ऑड कहां से लेने हैं, अगर आप ये कोडोमेन से लिया, कोडोमेन से अगर आपने लिया ये लेट, तो n इक्वल टू इस तरह का लेना पड़ेगा 2n माइनस 1। भाई ऑड है तो -1 या +1 इस टाइप के एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे। n इक्वल टू 2n माइनस 1 लिया, यहां से आपने fn निकाला, n ऑड है तो फंक्शन आपको ये लेना पड़ेगा, n की जगह पे क्या रखोगे आप 2n माइनस 1 एंड +1 अपॉन 2, इससे ये कट गया, क्या आ गया n। देखो डोमेन में है कि नहीं है? ऐसे ही आप इफ n इज इवन, अगर आप इवन है तो n को कैसा लेंगे, 2 ऑफ n टाइम, यानी कोई भी इवन टर्म लेंगे, इवन टर्म ली तो n इक्वल टू 2n लिया, तो यहां से आपने fn देखा, fn इक्वल टू क्या आया भाई, n/2 मीन्स 2n/2 n which also belongs to n। So for every bi belongs to the domain there exists a x belongs to the domain such that fx equal to bi। ये मैंने लिख दिया, hence your f is on। Here the function f being a 1-1 function and an onto function is a bijective। Okay, so it is the question number 9, and now we are coming to question number 10, and in question number 10 a function is defined। In question number 10 what is the function? Here two sets are given, let A, the first set is given to you r minus all set of all real numbers except the number 3, and set B is equal to set of all real numbers except the number 1। एक को छोड़ करके सारे रियल नंबर बी में हैं और 3 को छोड़ करके सारे रियल नंबर ए में हैं, ये दो सेट है। और अब फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड एज, ये डिफाइंड है कि fx इक्वल टू क्या है भाई, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ये आपका फंक्शन है, a से b तक में डिफाइन है, एंड यू हैव टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, कि आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये चेक करना है। इंजेक्टिविटी चेक कीजिए आप, इंजेक्टिविटी, और इंजेक्टिविटी के लिए मैंने क्या किया, आपने दो एलिमेंट लिए x1 x2, कहाँ से लिए भाई, डोमेन से लेते हैं एलिमेंट, और डोमेन क्या है यहाँ पर आपका a, और a क्या है भाई r-3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने r-3 से लिए, यानी जो डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से 3 को छोड़ करके एक्सेप्ट 3 ऑल द रियल नंबर्स आर इन सेट सच दैट, और ये कैसे लिए मैंने, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2,
अगर ये fx1 इक्वल टू fx2 लिया है तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई आपको, fx किसके इक्वल है, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री की। तो यहाँ से आप x1 की जगह x की जगह x1 लिख दो, x माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री बी इक्वल टू x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। यहाँ से आप जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 माइनस टू का मल्टीप्लाई x2 माइनस थ्री में होगा और x2 माइनस टू का मल्टीप्लाई x1 माइनस थ्री में हो जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा x1 x2 माइनस थ्री x1 माइनस टू x2 प्लस टू का थ्री मल्टीप्लाई सिक्स, x2 का x1 x1 x2, x2 का माइनस थ्री में माइनस के थ्री x2, माइनस टू का x1 में माइनस टू x1 और माइनस टू का माइनस थ्री में प्लस के सिक्स। पहली बात तो प्लस सिक्स से ये प्लस सिक्स कट गया और x1 x2 से ये x1 x2 कैंसिल्ड आउट हो गई। जितनी भी x1 की टर्म है उनको लेफ्ट हैंड साइड में और x2 की टर्म है उनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। x1 की टर्म कितनी है भाई, ये माइनस थ्री x1 तो यहाँ है और मैं इस माइनस टू x1 को भी इधर ट्रांसफर करके ले आया प्लस टू x1 और जो x2 की टर्म है उनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर x2 की टर्म है माइनस थ्री x2 और ये इधर जा करके प्लस टू x2 हो जाएगा। इट मीन्स माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2 implies that x1 इक्वल टू x2। इमेजेस इक्वल लेकर के हम लोग चले अपने डोमेन से और हमने ये निकाल दिया कि एलिमेंट्स भी इक्वल है। सो फ्रॉम हियर fx1 इक्वल टू fx2 implies that x1 equal to x2 for all these elements are from the domain of this set function domain, and what is the for all x1 and x2 belongs to the domain is r minus 3 and hence your f is 1 first part, f is an 1 function, f is 1 function। तो भाई पहला पार्ट प्रूव हो गया कि इस फंक्शन में जो हमारा फंक्शन f है वो 1 होगा। चलिए चेक करते हैं सर्जेक्टिविटी। आप अगर इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे तो सर्जेक्टिविटी के लिए उसके कोडोमेन से एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं। सर्जेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी के लिए मैंने क्या लिया भाई, लेट मैंने पाई लिया, कहाँ से लिया, कोडोमेन से r माइनस 1 से। कोडोमेन क्या है देखो, b है, b का मतलब ये है, r माइनस 1 से लिया मीन्स कोडोमेन से लिया। और कैसे लिया भाई, सच दैट fx इक्वल टू बाई है, fx इक्वल टू बाई है। मैंने इस तरीके से ये एक एलिमेंट ले लिया बाई कोडोमेन से जिससे fx इक्वल टू बाई हो। अब fx की वैल्यू क्या है आप देखिए, fx की वैल्यू है ये x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री इक्वल टू बाई। मैंने ये कहा है कि जब भी आप fx इक्वल टू बाई रख रहे हैं तो अगर पॉसिबल है तो x की वैल्यू बाई के टर्म्स में हम लोग निकाल लेते हैं। चेक करो यहाँ पर हो सकता है क्या ऐसा, भाई हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस टू इक्वल टू एक्स बाई माइनस थ्री बाई। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस एक्स बाई इक्वल टू माइनस थ्री बाई एंड प्लस टू। मैंने x की जितनी भी टर्म्स थी उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिएगा, x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बाई मिलेगा आपको इक्वल टू यहाँ से 2 माइनस थ्री बाई। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 माइनस थ्री बाई अपॉन 1 माइनस बाई और x इक्वल टू, आप माइनस न्यूमरेटर से और माइनस डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 बाई माइनस टू, भाई यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया आपने और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया बाई माइनस 1 और इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे कि आपका डोमेन और कोडोमेन क्या है। आपका ये डोमेन है ए, ये आपका फंक्शन है एफ। इट मीन्स ए में क्या है, सारे रियल नंबर्स है, किसको छोड़, 3 को। और कोडोमेन में क्या है, तो आप यहां से एक बाई लेंगे, हम लोग कहां से लेंगे, बाई लेंगे, यहां से 1 को छोड़ करके कोई सा भी रियल नंबर लेंगे और ये चेक करेंगे उस रियल नंबर की प्री इमेज
यहाँ पर इस x में है या नहीं है, ये चेक करेंगे हम। और वो कैसे चेक करेंगे, अब आप यहाँ से देखिए, ये आपका फंक्शन y इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि अगर y इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, पर आपका कोडोमेन भी में 1 है ही नहीं, तो आप 1 तो रख ही नहीं सकते, तो ये फ्री हो गए, पहली बात, इससे फ्री हो गए। अब आप y की कोई भी वैल्यू रख करके देखिए। अब y की कौन सी वैल्यू रख करके देखें भाई, y क्या है, रियल नंबर से सारे, एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके कोई भी रियल वैल्यू अगर आप यहाँ y की आप रखेंगे तो जो x का आंसर आएगा वो रियल ही आएगा, ये चेक कर लो बस। रियल ही आएगा, रियल ही कब आएगा, जब वो इमेजिनरी नहीं है। तो किसी भी कंडीशन में y की किसी भी वैल्यू के लिए x इमेजिनरी नहीं आ सकता, तो फिर क्या आएगा, y की हर एक वैल्यू के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, x विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर, हमेशा रियल नंबर आएगा, हमेशा रियल नंबर आएगा। इट मीन्स y की यहाँ पर प्री इमेज होगी। ये समझने वाली बात है, और अब उस लैंग्वेज को लिखेंगे कैसे वो आप देख लीजिएगा। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, b मीन्स r-1, there exists x belongs to r-3 डोमेन में, such that fx equal to y। अब चेक करो भाई, क्या fx equal to y आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे, fx की जगह पे क्या रखेंगे आप, 3y-2 अपॉन y-1, तो रिजल्ट y आ जाना चाहिए। चेक करिए आप, देखिए, तो मैंने यहां पर ये वैल्यू रखी fx की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू ये, तो f ये मैंने रखा 3y-2 अपॉन y-1 इक्वल टू, मैंने फंक्शन में ये वैल्यू रख करके देखी। अब 3y-2 अपॉन y-1 ये आएगा, आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, x-2 अपॉन x-3, तो x को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे आप, तो ये होगा 3y-2 अपॉन y-1, ये मैंने इस x की वैल्यू रख दी, ये -2 अपॉन यहाँ आएगा 3y-2 अपॉन y-1, ये -3। कैलकुलेट कर दीजिएगा आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आएगा y-1, 3 -2 का y में मल्टीप्लाई करोगे -2y, -2 का -1 में करोगे +2 अपॉन, और यहाँ पर भी एलसीएम y-1 आया, 3y-2, -3 का -y में मल्टीप्लाई -3y, और +3, ओके, ये हो गया 3y-2 -3y एंड +3, ओके। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस y-1 से y-1 कैंसिल हो गया, चेक करिए 3y से ये 3y कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये मिला आपको y अपॉन 3 - 2 1 इक्वल टू y। सो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि f ऑफ 3y-2 अपॉन y-1 इक्वल टू y। हेंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r-1 कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एक x जरूर होगी डोमेन में, देयर एग्जिस्ट x belongs to r-3 such that fx equal to y, and this implies that your function f is on। अगर f on to भी है और f आपका 1 भी है तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। ओके, सो इट इज द क्वेश्चन नंबर 10। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी हम लोगों ने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन किए हैं, फिर भी थोड़ा सा और मैं आपको हेल्प किए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में ये है आपका फंक्शन, वी हैव फंक्शन f फ्रॉम r to r and function is defined as fx equal to x की पावर 4। ये है आपका, आपको चेक करना है। यहाँ कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, F11 ऑन टू है, F11 है ऑन टू नहीं है, है ना, ऑन टू है 11 नहीं है, या 11 ऑन टू दोनों ही नहीं है, राइट।
तो यहाँ इंजेक्टिविटी अगर आप चेक करेंगे पहले इंजेक्टिविटी, और इंजेक्टिविटी के लिए आपने क्या किया, कोई से दो एलिमेंट लेंगे आप, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, R मीन्स डोमेन, आपने डोमेन से, इस डोमेन से दो एलिमेंट ले लिए, सच दैट कैसा fx1 इक्वल टू fx2 है। और मैं यहाँ से ये चेक करूँगा कि अगर दोनों फंक्शन की ये इमेजेस अगर इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल हों। उसके लिए अब ये इवन फंक्शन है, जब भी कभी इवन फंक्शन आता है x की पावर 2 x की पावर 4, आपने पता है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर आप डोमेन से लेंगे और उनका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जनरली जब भी फंक्शन R से R में डिफाइन हो और अगर इवन फंक्शन हो, इवन मीन्स x की इवन टर्म्स हों, पावर्स हों, 4 2 x की पावर 2 x की पावर 4 x की पावर 6, तो हमेशा फंक्शन 1 1 नहीं होता। कई हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर। अगर आप यहाँ -1 लें और एक +1 लें, आप यहाँ पर अगर x1 इक्वल टू -1 लें एंड x इक्वल टू x2 इक्वल टू 1 लेंगे तो f -1 की इमेज क्या आएगी, देखो -1 की पावर 4 मीन्स +1 आएगी। f1 की इमेज क्या आएगी, f के द्वारा 1 की इमेज वो आएगी 1 की पावर 4 मीन्स वो भी 1 आएगी। इसका मतलब इसकी भी इमेज है 1 और इसकी भी इमेज 1 ही है, फंक्शन इज नॉट 1। दिस implies that fx1 equal to fx2 implies that x1 is not equal to x2 for all x1 x2 belongs to R, and so f is not 1 1, f is not 1 1, तो आपका फंक्शन 1 1 नहीं है। चलते हैं सेकंड केस पर, और सेकंड में भी यही है भाई, ये भी हम लोग कर ही चुके हैं, पहले कई क्वेश्चन किए हैं। सर्जेक्टिविटी, और जब सर्जेक्टिविटी आप चेक करेंगे तो यहाँ से आप कोई एक एलिमेंट बी लेंगे। सेट क्या है, सेट जरूर चेक कर लिया करो कि हमारे सेट्स क्या हैं। सेट हमारा यहाँ पे भी रियल नंबर और यहाँ रियल नंबर। अब आपको जब सर्जेक्टिविटी चेक करनी है तो आपको ये चेक करना है कि इस कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ हो। पर आपने ये देखा कि यहाँ पे इसकी जो कोडोमेन में इस फंक्शन की रेंज है वो क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। क्यों, क्योंकि fx इक्वल टू x की पावर 4 है। आप नेगेटिव नंबर की पावर 4 या पॉजिटिव नंबर की पावर 4 करेंगे तो जो रेंज आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर आएगी। और पॉजिटिव नंबर आएगी, बट अब हमारा कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो उन पॉजिटिव नंबर्स के अलावा भी नेगेटिव नंबर ऐसे छूट जाएंगे जिनकी प्री इमेज आपके डोमेन में नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। मैं आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज हम लोग लिख देते हैं कि लेट पाई बिलोंग्स टू आर, ये कोडोमेन से मैंने ऐसा एलिमेंट लिया, कैसा लिया, सच दैट fx इक्वल टू बाई होना चाहिए, fx इक्वल टू बाई होना चाहिए। यहां पे क्या है, बट देयर आर नेगेटिव एलिमेंट्स इन आर कोडोमेन which have no preimage in the domain R, ये लाइन लिख देनी है। बट there are negative elements या elements number, there are negative numbers in codomain which have no preimage in domain। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे जिनकी डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर f is not on। तो हमारा फंक्शन 1 1 भी नहीं है, आपका 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये जो भी ऑप्शन है वो आप चेक कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ शायद डी ऑप्शन था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अगर आप चेक करें, आपका फंक्शन वही है f फ्रॉम r टू r, केवल फंक्शन यहाँ चेंज हो गया, fx इक्वल टू x की पावर 5 आप यहाँ करते हैं, और चेंज क्या आएगा वो देख लो आप। x1 x2 r में लेंगे। अब ये इवन पावर नहीं है,
इवन पावर नहीं, ऑड पावर है। ऑड का तो आप -1 की पावर 5 निकालेंगे तो -1 आएगा, और +1 की पावर 5 निकालेंगे तो प्लस आएगा। डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट आएंगी, राइट। सो आप यहाँ लेंगे x1 x2 मैंने डोमेन से लिया सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, और यहाँ पर ये नहीं होगा कि -1 की इमेज भी 1 आए और +1 की इमेज भी 1 आए। यहाँ पर ये एग्जाम्पल लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो ये क्या होगा, x1 की पावर 5 b इक्वल टू x2 की पावर 5। फिफ्थ रूट आप दोनों ओर से लेंगे तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2, राइट। सो फॉर ऑल x1 x2 belongs to R, fx1 equal to fx2 implies that fx1 is not equal to fx2 for all this one, right. Hence your function is 1 1, f is an 1 1 function, so here f is 1 1। चेंज कर देंगे उसी में, समझ में तो आ ही रहा है आपके, आपने जो क्वेश्चन कर रखा है उसी में मैं कहाँ इसमें चेंजेस होंगे वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब आप सब्जेक्टिविटी चेक करेंगे। अब आप सब्जेक्टिविटी चेक करेंगे तो यहाँ बाई में क्या आएगा, x की पावर 5 के टाइप के एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब यहाँ आप जब भी कोई भी रियल नंबर लेंगे और उनकी इमेज निकालेंगे तो प्लस की प्लस इमेज आएगी, माइनस की माइनस आएगी। इट मीन्स यहाँ नेगेटिव नंबर्स की इमेज भी यहाँ पर होगी और पॉजिटिव सारे नंबर्स की प्री इमेज भी यहाँ पर होगी। तो आप इस बात को लिखते हैं, लेट बाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन सच दैट fx इक्वल टू बाई, सच दैट fx इक्वल टू बाई। यहाँ पे आप इसको चेक कर लें, fx क्या है आपका, x की पावर 5, x की पावर 5 इक्वल टू बाई है। मैंने ये कहा है आपको कि जब भी आप x की वैल्यू बाई की टर्म में निकाल सकते हैं तो जरूर निकाल दीजिएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 5 और बाई की पावर 1/5। अब आप बाई की वैल्यू कोई भी रखें, आप कोई सा भी रियल नंबर आप लिखेंगे, आप बाई की वैल्यू यहाँ से कोई भी रियल नंबर दे दीजिएगा तो x की वैल्यू आएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, रियल नंबर ही आएगी। अगर ऐसा रियल नंबर ही आएगा आपका आंसर, x की वैल्यू रियल नंबर ही आएगी, इट मींस एवरी y हैज प्री इमेज इन डोमेन, राइट। ये आप लिख दीजिएगा। सो x की वैल्यू आ गई तो आप fx निकाल करके देखो भाई, fx क्या आएगा, x यहाँ पे क्या रखोगे, y की पावर 1/5। अब फंक्शन क्या है आपका, fx फंक्शन क्या है, ये है, तो इसमें x की जगह पे क्या रखोगे, y की पावर 1/5। ये तो हो गया y की पावर 1/5 x की जगह पे, और पावर 5 लगा हुआ है तो पावर 5 लगा दो, इस 5 पावर से ये कट जाएगा, क्या आ गया, y आ गया। सो हेंस फॉर ऑल y belongs to b, y belongs to r, there exist x belongs to r such that fx equal to y। y की प्रत्येक एलिमेंट की इमेज कहां पर है, आपके डोमेन में है। सो योर फंक्शन f इज ऑन टू, f कैसा हुआ, f इज ऑन टू, और अगर f ऑन टू है, यहाँ पे आपने देखा कि आपका फंक्शन 1 1 भी है और f ऑन टू भी है, सो योर फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टेड। आपका जो भी ऑप्शन है, अब आप चेक कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन A B C D में कि 1 1 ऑन टू कौन सा सही है। मैं समझता हूँ आपका ऑप्शन A इज करेक्ट, इन विच इट इज गिवन दैट, सो करेक्ट दिस ऑप्शन A। सो द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। इस तरीके से दिस इज द कंप्लीशन ऑफ exercise 1.1 1.2। on our next lecture we will discuss about the composition of functions and some other definitions। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, थैंक यू।